السلام علیکم۔ آج میں ایک اور حدیث کے ساتھ آئی ہوں جو آپ لوگ کو سناؤں گی میں آج۔ اور آج کی حدیث آپ کے دل کو ہلا دے گی۔ یہ حدیث ایک کہانی نہیں بلکہ ہمارے نبی کی بتائی ہوئی ایسی بات ہے جسے سن کر انسان رو پڑے گا، ایسی یہ حدیث ہے۔ تو اس حدیث کو آپ لوگ ضرور سنیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ حدیث سن کے آپ لوگ کو بہت کچھ جانکاری ہوگی اور بہت اچھا بھی لگے گا۔ اور جو بھی حدیث سنیں اسے پورا سنیں شروع سے لاسٹ تک، جبھی آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ حدیث کس چیز پہ تھی اور کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں سے ختم ہوئی۔ جب تک آپ پورا نہیں دیکھیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ حدیث کس چیز پہ تھی۔ اذان ہو رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے روک رہی ہوں میں۔ تو چلیے حدیث کی بات شروع کرتی ہوں۔ نبی نے فرمایا، جس نے مدینے کی مشکلوں پر صبر کیا، قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا۔ سوچئے ذرا، نبی ایسا کہہ رہے ہیں۔ جس انسان کے لیے خود نبی سفارش کریں گے اس کی قسمت کتنی بڑی ہوگی۔ یہ سچی بات ہے کہ نبی جس انسان کے لیے سفارش کریں گے وہ انسان کتنا خوش قسمت ہوگا۔ مکہ جہاں حج کرنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، جانے کے لیے سوچتے ہیں، جہاں لاکھوں لوگ روز رو کر دعا مانگتے ہیں کہ مجھے وہاں کی زیارت ہو جائے، میرے نصیب میں یا خدا لکھ دے کہ میں مکہ کا زیارت کروں۔ اور مدینہ جہاں ہمارے پیارے نبی آرام فرما رہے ہیں، جہاں کی مٹی بھی مبارک ہے، جہاں ہمارے نبی آرام فرما رہے ہیں وہاں کی مٹی بھی مبارک ہے۔ آگے سنیں۔ آج کی یہ حدیث بہت ہی اچھی حدیث ہے جو سننے میں آپ لوگ کو بھی بہت اچھا لگے گا۔ ایک بار ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ ایک صحابی نے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ تو مکہ اور مدینہ کی فضیلت ایسے بتائی گئی کہ ہر مومن کا دل وہاں جانے کے لیے تڑپ اٹھتا ہے۔ ہر مومن کا دل وہاں جانے کے لیے تڑپ اٹھتا ہے۔ سب جتنے بھی دنیا میں مسلمان بھائی بہن ہیں سبھی کی وہاں جانے کی خواہش ہوتی ہے، تڑپ اٹھتا ہے۔ دنیا کی دولت انسان کو سکون نہیں دیتی، لیکن مدینے کا نام سن کر دلوں کو سکون ملنے لگتا ہے۔ یہ صحیح بات ہے۔ کتنا بھی آپ کے پاس پیسہ ہو، دولت ہو، اس سے سکون نہیں ملتی، لیکن ایک بار مدینہ، مکہ، اس کا نام سن لیں اور چاہے اس کے سوچ لے دل میں کہ ہمیں جانا ہے وہاں، تو دل کو کتنا سکون ملتا ہے، کتنا اچھا محسوس کرتے ہیں، سکون ملتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، مدینہ لوگوں کے گناہوں کو ایسے صاف کرتا ہے جیسے بھٹی میں لوہے کی گندگی صاف ہوتی ہے۔ اس طرح مدینہ گناہوں کو انسان کے صاف کرتا ہے۔ سوچئے کیسا مبارک شہر ہوگا وہ، جہاں لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن اصلی کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہے۔ اصلی کامیابی تو اللہ اور ان کے محبوب کی محبت میں ہی ہے۔
असली कामयाबी। आगे सुने। जो भी आदमी मक्का और मदीना को याद करता है तो अल्लाह उसके दिल में नूर पैदा कर देता है। जो भी आदमी मक्का और मदीना को याद करता है तो अल्लाह उसके दिलों में नूर पैदा कर देता है। कहते हैं जिसे मदीना बुलाना होता है उसे खुद अल्लाह रास्ता बना देता है। कहते हैं जिसे मदीना बुलाना होता है उसका रास्ता खुद अल्लाह बना देता है। कितने लोग जो लाख सालों से जाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं जा पाते, और कितने ऐसे हैं जिन्हें अचानक बुलावा आ जाता है। तो ये तो हकीकत बात है कि जिसे अल्लाह खुद बुलाता है उसे कोई रोक नहीं सकता। और कितने लोग ऐसे हैं जो वहाँ जाने की चाहत दिल में ख्वाहिश रखे हुए बैठे हुए, उनका नंबर नहीं आता, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। और जिसे खुदा को बुलाना होता है उसे अचानक से बुलावा आ जाता है और वो उनकी वहाँ पहुँच जाते हैं। आगे सुने। और ये सिर्फ किस्मत नहीं, ये अल्लाह की रहमत है दोस्त। अगर आपके दिल में भी मक्का और मदीना की मोहब्बत है तो कभी दिल से सुभान अल्लाह कहिए और सोचिए, अगर आज हमें मदीना की ज़ियारत मिल जाए तो क्या हमारे आँखों से आंसू नहीं निकलेंगे? खुशी के आंसू निकल जाएंगे। किसी के कहने से और सुनने से थोड़ी ना, वो तो खुदा ही कुदरती होता है। दिल में इतनी खुशी महसूस होती है कि वहाँ के नाम सुनते ही, और जिसको खुदा बुला ले वहाँ तो उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, और खुशी से आंखों से आंसू गिरने लगते हैं कि या खुदा तूने मुझे वहाँ बुला लिया। मेरी किस्मत इतनी तेज थी कि खुदा ने मुझे वहाँ बुला लिया, मुझे मक्के की और मदीने की ज़ियारत हो जाएगी। आगे। और जब लोग वहाँ पहुँचते हैं, अपनी आँखों से मक्का को देखते हैं तो दिल की हालत बदल जाती है। ऐसा लगता है जैसे सारी परेशानियाँ ख़त्म हो गई। यहाँ आने के बाद अब कुछ भी नहीं रहा मेरी ज़िंदगी में, जो भी परेशानियाँ थी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो गई, ऐसा महसूस होता है वहाँ जाते ही। ये बहुत बड़ा खुदा का नूर है। सारी परेशानियाँ ख़त्म हो गई। नबी ने फरमाया, मेरे उम्मत में से जो मुझ पर ज़्यादा दरूद भेजेगा वो क़यामत के दिन मेरे सबसे करीब होगा। जो मुझे सबसे ज़्यादा दरूद भेजेगा वो क़यामत के दिन मेरे सबसे करीब होगा। नबी ने ऐसा कहा। आगे सुनिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी बरकत हो, दिल को सुकून मिले और ज़िंदगी आसान हो जाए तो अल्लाह को याद करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जिसने अल्लाह को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। जिसने अल्लाह को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। ऐसा तो सभी से मैं कहना चाहूँगी कि दरूद शरीफ पढ़ने का आदी बना लें। रोज़ आपसे जितना हो सके उतना दरूद अपने नबी पे भेजें। जितना आप पढ़ेंगे उसका अजर आपको मिलेगा। अल्लाह हमें मक्का और मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। सभी दुनिया में जितने भी मुसलमान भाई हैं सभी को मक्का जाने की
हाजिरी फरमाए। दुआ करती हूँ, मैं खुद दुआ करती हूँ सबके लिए, दुनिया में जितने भी मेरे मुसलमान भाई हैं सभी को वहाँ जाने की अल्लाह पाक हाजिरी फरमाए, सभी के दिल को सुकून दे। सभी को वहाँ जाने की चाहत होती है, अल्लाह पाक सभी मुसलमान भाइयों की ये चाहत पूरी करे। और मेरी वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगती है तो मुझे सपोर्ट करें और अपनी बहन का वीडियो पूरा देखा करें शुरू से लास्ट तक, जब भी समझ में आएगी। आज की ये हदीस मक्का और मदीने पे थी, हज के दौरान। हज पे जाने की ख्वाहिश सभी की होती है, लेकिन कुछ चले जाते हैं जिनको खुदा के घर से बुलावा आ जाता है। खुदा जिसे बुला लेते हैं वो वहाँ पहुँच जाते हैं, जिन्हें बुलावा नहीं आता है वो मायूस होकर यहीं रह जाते हैं। एक न एक दिन उनकी भी आएगी, नसीब उनका भी बुलंद होगा, वो भी जाएंगे। और आप लोग अपने बहन को सपोर्ट कीजिए। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और अपनी बहन को आगे बढ़ाएं। और हदीस पूरा सुना करें, पूरा सुनेंगे जब भी समझ में आएगा कि ये हदीस किस चीज़ पे थी और कहाँ से शुरू हुई और कहाँ से ख़त्म हुई, तभी आपको समझ में आएगी। आज की हदीस मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी लगी होगी, मुझे भी अच्छी लगी पढ़ने में, दिल को भी सुकून मेरे को मिला। मुझे बहुत सुकून मिला इस हदीस को पढ़ के। उम्मीद करती हूँ आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। तो अपनी बहन को सपोर्ट जितना कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आज की ये हदीस आप लोग को कैसी लगी। तो चलिए इसी के साथ चलती हूँ। अपनी बहन रज़िया परवीन को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।